ہندوستان کو تعلیم کے عالمی مرکز میں تبدیل کرنے کا عزم۔ مرکزی وزیر تعلیم رمیش پوکھریال نشانک نے کہا کہ وہ ایک گلوبل مائنڈ سیٹ اور گلوبل اپروچ کے ساتھ ہندوستان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک گلوبل ہب کے طور پر فروغ دینے کے تئیں پرعزم ہیں۔ ڈاکٹر نشانک نے یہاں جنوب مشرقی ایشیائی اقوام کی تنظیم آسیان کے رکن ممالک کے سفیروں کی موجودگی میں آسیان پی ایچ ڈی فیلوشپ پروگرام کے پہلے بیچ کا خیر مقدم کیا اور انہیں ہندوستان میں دوستانہ تعلیم کا ماحول دینے کی یقین دہانی کرائی۔ آسیان ممالک کے 1000 طلبہ ہندوستان کے IIT اداروں میں PhD کر سکیں گے۔ یہ پروگرام ہندوستان اور آسیان ممالک کی 25 برسوں سے بھی زیادہ قدیم شراکت داری اور ہندوستان کی ایکٹ ایسٹ پالیسی کی مضبوطی کا یہ زندہ ثبوت ہے۔ یہ پروگرام بیرون ملک کے طلبہ کے لیے حکومت ہند کی جانب سے کیے گئے سب سے بڑے استعداد کو فروغ دینے کے پروگرام میں سے ایک ہے۔ تعلیم کے گلوبلائزیشن ہندوستان میں تعلیم کے ساتھ ہی معیاری تعلیم پر ہماری خاص توجہ ہے اور یہ پروگرام اسی سمت میں اٹھایا گیا ایک مثبت قدم ہے۔ ہم پوری دنیا کو ایک ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ کورونا سے نپٹنے کے لیے نافذ کردہ لاک ڈاؤن غیر دستوری، ٹرمپ کا بیان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک کی مختلف ریاستوں میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے متعدد گورنرز کی جانب سے نافذ کردہ لاک ڈاؤن کو غیر دستوری قرار دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کورونا پر قابو پانے میں کامیاب رہے ہیں، لیکن جو کام دوسری ریاستوں کے گورنرز کر رہے ہیں وہ غیر دستوری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سیاسی وجوہ کی بنا پر ایسا کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ کورونا سے متاثر ہونے کے باوجود ماسک پہننے کے بارے میں ان کی رائے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ وہ اب بھی اس بات پر قائم ہیں کہ آیا لوگ ماسک پہنے ہیں یا نہیں، یہ لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ادھر صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے پولیس کے بجٹ میں تخفیف کی تجویز کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ پولیس کی تعداد زیادہ ہونے سے جرائم میں کمی آئے گی۔ بائیڈن کے مطابق وہ پولیس کے علاوہ سماجی کارکنوں اور اقلیتی برادری کے لوگوں کی ایک گروپ تشکیل دیں گے جو مل کر معاشرتی سطح پر سیکورٹی کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ امریکہ میں آذربائیجان کے حق میں مظاہرہ۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں آذربائیجان کی زمین پر آرمینی حملوں اور پہاڑی قرباخ پر قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ آذربائیجان اور ترکی کے پرچموں کے ساتھ مظاہرین وائٹ ہاؤس کے سامنے جمع ہوئے اور آذربائیجان کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرین نے آرمینیا کے قبضے اور جارحانہ رویے کے خلاف تنقیدی تحریروں والے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے امریکی انتظامیہ سے قبضے اور شہریوں پر حملے کے خاتمے کے لیے آرمینیا پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ مکتوب ریاض من جانب محمد سیف الدین سعودی عرب۔ شدید بارش کے باعث شہر حیدرآباد اور شہر کے مضافاتی علاقوں میں ہوئی تباہ کاریوں کے پیش نظر بیرونی ممالک میں مقیم ریاست تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے اور خاص کر حیدرآبادی تارکین وطن میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ شدید طور پر متاثرہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے
तारिकीन जिनके घर इस बारिश की वजह से मुतासिर हुए हैं या जिनके रिश्तेदार बेघर हो गए, ऐसे तारिकीन वतन अपने अहले खाना और रिश्तेदारों के लिए काफी फिक्रमंद हैं। कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन की वजह से कई तारिकीन वतन अपने अफराद खानदान से मिलने के लिए बेचैन हैं। खास तौर पर सऊदी अरब में मुकीम तारिकीन वतन जो पहले ही दोनों ममालिक हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हवाई सफर की सहूलत न होने के बाइस छुट्टी पर जाने से भी खासिर हैं। ऐसे में शदीद बारिश के बाइस उनके रिश्तेदारों और बेहिकाओं के बारिश से मुतासिर होने की इतलात ने उन्हें मजीद परेशान और फिक्रमंद कर दिया है। खलीजी ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानी तारकीन का दिल हमेशा अपने वतन के लिए तड़पता है और मुल्क में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात से उन्हें शदीद सदमा पहुँचता है। खलीजी ममालिक में मुकीम तारिकीन वतन में अक्सरियत ऐसे अफराद की है जो यहाँ अपने अहलो अयाल के बिना ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये गरीबुल वतन तारिकीन हर साल या 2 साल में एक मरतबा अपने अहलो अयाल से मिलने के लिए हिंदुस्तान का सफर करते हैं। 7 समंदर पार गैर मुल्क में आरजी क़याम की वजह से उनका दिल हर वक्त अपने मुल्क के लिए ही धड़कता और तड़पता है। ऐसे में वहाँ किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल की खबर उन्हें परेशान कर देती है। सोशल मीडिया के आम होने की वजह से बैरून मुल्क तारिकीन वतन न सिर्फ अपने शहर और मोहल्ले बल्कि अपने उस पड़ोस के अहवाल का सोशल मीडिया के जरिए रास्त नजारा करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में हैदराबादी तारिकीन वतन शहर यानी हैदराबाद के लिए बेइंतहा फिक्रमंद और परेशान है। ऐसे में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इन हालात में भी सियासी रोटियां सेकने की कोशिशों से ये तारिकीन वतन दिल बर्दाश्ता है। सऊदी अरब में मुकीम तारिकीन वतन की अक्सरियत ने तमाम सियासी जमातों और गैर सियासी तंजीमों से अपील की है कि हर तरह के सियासी और नजरियाती इख्तिलाफ को बालाए ताक रखते हुए इमदाद और राहत कारी कामों में हर तरह से एक दूसरे की मदद करें। मौजूदा सूरत हाल में भी सियासत करना किसी भी कायद को जेब नहीं देता, इसीलिए आपसी इत्तेहाद का मुजाहरा करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। लीजिए हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। प्रोग्राम वरक वरक चेहरा में मजमुए कलाम अफकारे बज़्म ज़की पर प्रोफेसर सुलेमान अतहर जावेद का तबसरा मुलाहिजा फरमाएं। मज़कूरा मजमुए कलाम बज़्म ज़की के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा मुशायरों की तरह गज़लों पर मुश्तमिल है। इस मजमुए कलाम में तकरीबन 20 शोरा का कलाम इशाअत पजीर है। इन शोरा के नाम इस तरह हैं: हिलाल कड़पवी, दरवेश कादरी ज़की, दाऊद निशात, बर्क कड़पवी, जाफर अमीर, अनवर कड़पवी, ख्याल कड़पवी, नाजिश कड़पवी, जावेद कड़पवी, काजी मीर कदीरी, रशीद नियाजी, सलाम कड़पवी, अफजल बुखारी, नजीर अहमद खान नजीर, हैदर कड़पवी, कासिम कड़पवी, कैफ चन्नूरी, सरमद कड़पवी, महबूब बादशाह अमीर, अंजुम कड़पवी, कलीम कड़पवी। प्रोफेसर सैयद दरवेश कादरी ज़की साहब मुतासर कुन शख्सियत के मालिक थे। खंदा पीशानी, हुस्न सुलूक, पुरखुलूस और बेरिया खिदमत और इंसान दोस्ती की वजह से शहर कड़पा में एहतराम और इज्जत की निगाह से देखे जाते थे और उन्हीं के नाम से 1966 में बज़्म ज़की की तश्कील अमल में आई। इस बज़्म ने शहर कड़पा में शोरा की तहजीबी और अदबी तरबियत और उर्दू ज़बान और अदब की फ़ज़ा को फ़रोग़ देने में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हैं। बज़्म की इन्हीं खिदमत का नतीजा है कि आज शहर कड़पा में उर्दू शेर व अदब की सरगर्मियां जारी व सारी हैं। इस तबसरे की पहली किस्त पेश की जा रही है। पहली किस्त में 4 शोरा हिलाल कड़पवी, दरवेश कादरी ज़की, दाऊद निशात और बर्क कड़पवी के कलाम पर तबसरा पेश किया जा रहा है। बज़्म ज़की को कड़पा की अदबी अंजुमनों में मुनफरिद और मुमताज हैसियत हासिल है। बिलखुसूस इसके कुल हिंद मुशायरों का तस्करा कड़पा ही की नहीं, जुनूबी हिंद की अदबी तारीख में सुनहरी अल्फाज से किया जाएगा। नीज वक्तन फवक्तन
मुनक़िद होने वाले अदबी इज्तिमाआत और पाबंदी के साथ मुनक़िद होने वाले माहाना तरही मुशायरे इस बज़्म के औसाफ हमीदा में शुमार किए जाते हैं। बज़्म ज़की के उफ़क़ शायरी पर जो शायर माह नौ की तरह नमूदार हुआ और बद्र कामिल बनने से पहले ही गायब हो गया, वो हिलाल मरहूम है। हिलाल की शायराना अजमत, ज़बान और बयान की नज़ाकतों और फन की बारीकियों से उनकी वाकिफियत, रिवायात के एहतराम और जिंदगी के नए तकाज़ों से शऊरी तौर पर उनकी हम आहंगी जाहिर होती है। उनके यहाँ लफ्फाजी नहीं, उनकी शायरी दावपेच की शायरी भी नहीं, उन्होंने अपने जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की है। सादगी और सरासत के साथ उनको अल्फाज का पैरहन अता कर दिया है। अशियार मुलाहजा हो, क्यों मेरा ज़ौक़े तलब रुसवा हुआ, क्यों मेरा ज़ौक़े तलब रुसवा हुआ, वो सनम थे तो खुदा को क्या हुआ। राह में लुटने का कोई गम नहीं, राह में लुटने का कोई गम नहीं, कम से कम मंजिल का अंदाजा हुआ। जलवा गाहे नास तो नजदीक थी, था मेरा ज़ौक़े नजर सहमा हुआ। एक और शेर समात फरमाएं। हयात खाए कहाँ तक फरेब जुल्मत के, हयात खाए कहाँ तक फरेब जुल्मत के, है जिसका नाम सहर वो भी रात है साखी। हयात खाए कहाँ तक फरेब जुल्मत के, है जिसका नाम सहर वो भी रात है साखी। प्रोफेसर सैयद दरवेश कादरी ज़की कोना मश्क शायर हैं, उस्ताद फन की हैसियत रखते हैं। कलाम में पुख्तगी है, फनकाराना महारत हर मिसरे से जाहिर है। ताशुख, तगज़्ज़ुल और तसव्वुफ उनके कलाम की नुमाया खुसूसियात हैं। उनके मौज़ूआत का रिवायत से गहरा रिश्ता है। ज़ाते महबूब से वाबस्तगी, तमन्नाओं के बर न आने का गिला, गमे जाना, दुआओं की बेअसरी, अपनी बेकसी और तही दस्ती का इजहार और ऐसे ही बंधे टके मौज़ूआत। उनका कलाम अपनी हलावत, शीरीनी और धीमेपन के बाइस मजा दे जाता है। चंद शेर समात फरमाएं। मेरा साथी फकत ये साया है, मेरा साथी फकत ये साया है, आपके साथ एक जमाना है। जिस दिन से गमे दोस्त को अपनाया है हमने, जिस दिन से गमे दोस्त को अपनाया है हमने, उस दिन से कोई रंज गवारा नहीं होता। इसी तरह तसव्वुफ के मौजू पर दो अशियार समात फरमाएं। जो शख्स तेरे हुस्न का शायदा नहीं होता, वो दिल का गनी आंख का बीना नहीं होता। जिस रह में तेरा नक्श कफे पा नहीं होता, उस रह को कोई पूछने वाला नहीं होता। दाऊद निशात को शेर कहने का सलीका है। उनके यहाँ कहने के लिए बात भी है और बात कहने का अंदाज भी। वो रिवायात से मुतासिर हैं, लेकिन अभी जदीद शेरी मिलानात उनके कलाम में पूरी जगह नहीं पा सके हैं। रमज व ईमा से काम लेने की वजह से उनके अशियार में तहदारी पाई जाती है। यही तहदारी और अल्फाज का मोहतात इस्तेमाल बात को निफासत व नजाकत से बयान करने की कोशिश और इंसान दोस्ती ने निशात की गजलों में एक खुनकी और दिल आवेजी की कैफियत और कैफ व निशात की सूरत पैदा कर दी है। ये अशियार मुलाहजा फरमाएं। ये लोग शम्मा पे इल्जाम क्यों लगाते हैं, ये लोग शम्मा पे इल्जाम क्यों लगाते हैं, खुद अपनी आग में परवाना आके जलता है। जहां में अजमत इंसान को ढूंढने वालों, अब आदमी है कहाँ, आदमी का साया है। मैं नहीं कह सकता कि निशात के सियासी रुझानात क्या हैं और इस मजमूए में शामिल उनकी गजलों से इसका पता नहीं चलता है, लेकिन उनकी गजलों के मुताले से ये जरूर मालूम होता है कि शायर सियासी शऊर का हामिल है, अंधेरों से लरज उठता है और उजालों का आरजूमंद है। ये अशियार देखिए कितने खूबसूरत हैं। ये कौन सा आलम है बता है शब हस्ती, ये कौन सा आलम है बता है शब हस्ती, जलते हैं दिए और उजाला नहीं होता। रोशनी दे न सके जो कभी दुनिया को निशात, रोशनी दे न सके जो कभी दुनिया को निशात, वो उजाले भी मेरी आज नजर से गुजरे। मुझे खिजा से नहीं बागबां से शिकवा है, मुझे खिजा से नहीं बागबां से शिकवा है, चमन को मैंने बहारों में लुटते देखा है। बर्फ कड़पवी तेवर का शायर है। बर्फ के तरन्नुम में जो बांगपन है, अगर यही बांगपन उनके कलाम में भी पैदा हो जाए तो बर्फ की शायरी और जादू जगा सकती है। बर्फ जमाने के रुख को जानते हैं, उनके अजाइम बुलंद और हौसले ऊंचे हैं।
وہ نبرد آزمائی کا جگر رکھتے ہیں، شکست پر آمادہ نہیں ہوتے، برق خلوص کا بھوکا اور محبت کا متلاشی شاعر ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ خاک کے ذروں کو تاروں کی طرح چمکا کر، خاک کے ذروں کو تاروں کی طرح چمکا کر، کہکشاں کوئی زمیں پر بھی سجا دو یارو۔ آبلا پائی میں کرتے رہو رقص آخر تک، آبلا پائی میں کرتے رہو رقص آخر تک، کھل سکے پھول جو صحرا میں کھلا دو یارو۔ رہتی ہے میرے ساتھ تیری یاد کی خوشبو، میں تیری جدائی میں بھی تنہا نہیں رہتا۔ برق یہاں جدید شعری میلانات قدرے زیادہ ہیں، وہ ان میلانات کی زد میں نہیں ہیں بلکہ ان میلانات پر ان کی گرفت ہے۔ اشارتی انداز بیان سے انہوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ ان کی شاعری اگر اسی رخ پر بڑھتی رہے اور وہ اپنا احتساب آپ کرتے رہیں تو اردو شاعری کو بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ وہ شخص جس کا ادھر سے کبھی گزر نہ ہوا، وہ شخص جس کا ادھر سے کبھی گزر نہ ہوا، گلی کی موڑ پہ کیوں جانے آج بیٹھا ہے۔ خاموش جھیل کا پانی سہی مگر اس میں جو پھینکیے کوئی پتھر تو چیخ اٹھتا ہے۔ ہماری صبح جنم سورجوں کو دیتی ہے، ہماری صبح جنم سورجوں کو دیتی ہے، ہماری رات کے دامن سے چاند اگتا ہے۔ جو دیکھیے تو ہے ایک بھیڑ اپنے ساتھ لیے، جو سوچیے تو ہر ایک شخص برق تنہا ہے۔ ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور قلمکاروں کے تعارف پر مشتمل ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ۔